Hello guys, I'm Nikhil Solanki, founder of Roricos, and Rorico is a kind of a baby which belongs to a father, a parent, Sigma Institute of Excellence. And why did we start this particular community? We want to listen so many people. What do I mean by so many people? Like educator, like students, like who have studied for 20 years. What do I mean by 20 years? 20 years means 3 years of nursery, 10 years of 1 to 10, then plus 2 yani 15 years, then after 5 years of any graduation, post graduation, and even after that particular moment, even after such a long period into the studies, a particular student comes to me and then asks me after MBA. You know what MBA stands for? MBA students comes up to me and tell me, sir, now what should I do? Is this our education system? Every year India enrolls 2 crore 50 lakh students as far as standard 10 is concerned. From out of those 2 crore 50 lakh students, approximately 95 lakh students chooses science field, approximately 45 lakh students chooses commerce field, then arts and vocational kind of combine, you can combine it for some 30 to 40 lakhs, then comes ITI and other things. It goes around 2 crore 50 lakh students. I haven't break down entire data. I have selected that particular science and commerce field. Now we would like to dive into the science field. In that particular 95 lakh students, out of those students, approximately 25 lakh, 22 lakh, 25 lakh students chooses NEET. Now, out of those, we have approximately 1.2 lakh, 1.3 lakh seats available. That falls for around 5 to 6%. Then certain 12 to 13 lakh students chooses JEE out of those 95 lakh students. And we have approximately 60,000 seats available for those JEE students, right? Then what happens? That also goes around 5 to 6%. Then the situation becomes worse when people goes for UPSC, IAS. We have approximately 933 seats available. If you will go on another platform, it will show 958 seats are available. For that, approximately 9 lakh to 10 lakh students apply UPSC, and I have problems with those educators. Like जो बच्चा कभी स्कूल में 50 या 100 का जो क्लास है, वॉट एवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी लिमिट्स के एक क्लास में इतने बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सके. काफी सारी स्कूल होते हैं, कभी किसी क्लास में 100 बच्चे ना, चलो मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं, किसी क्लास में 100 बच्चे, उसमें कभी जिस बच्चे ने टॉप नहीं किया, लाइक वी हैव एक 1 और 2 इंस्टाग्राम स्टोरीज जहां पे एक बच्चा है जिसका 40% 10th में था, वो यूपीएससी क्रैक कर गया, आईएएस बन गया. वी हैव one story out of those 1 crore students who is getting good marks. Apart from that, why are we selling dreams to those people? Like just to हमारी जेबें भरने के लिए we educators ये इनको दलदल में डालते हैं. क्या वो सही है कि क्या वो आईएएस बन भी सकते हैं क्या? And what our education system offers, we have nothing to do with the government. We are not against the government. We are talking about education system. Yes, there are also plus of Indian education system. There are also plus of American education system. We are talking in particular. There are minuses of Indian education system. There are minuses of American education system. But we will talk about Indian education system. Our students go for rote learning. No students, no parents, nobody talks about smartness, improvement, quality of education. Just refers to our status. Parents comes to me, says that my student get this much of percentage, how can I put this result into the status? Is your child's progress, is your what status, like how can you control your child just for numbers? Is it okay कि यार वो ornament नहीं है उसका result, and how can you scold your child for those numbers? It may be possible that particular child has been going through our situation of his life, her life.
ठीक है, इट मे बी पॉसिबल। कुछ पेरेंट्स तो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ में दिक्कत आई थी, वो बच्चा पढ़ नहीं पाया था, जस्ट दे आर वरीड ऑन दैट रिजल्ट डेट कि यार रिजल्ट नहीं आया। एंड व्हाट, पूरे साल में 12 महीने में, चलो 10 महीने लगा दो, 11 महीने लगा दो, 40-45 दिन का वैकेशन होता है, वो बच्चा सीखता क्या है? 7 बुक्स, ओनली 7 बुक्स, इज इट इनफ? लाइक उसको फ्रीडम दो और कुछ भी सिखाने का, लाइक और कोई लैंग्वेज सिखाओ उसको, देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स, लाइक फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती है बच्चों के अंदर। लाइक when I was on the topic of those numbers, it was not that I wanted to share some data. I wanted to show some seriousness about the data. Like everyone wants to become a doctor. Like आप देखो, अगर 2,50,00,000 स्टूडेंट्स जो बोर्ड में एनरोल किए, उसमें से 10% स्टूडेंट्स नीट क्लियर करना चाहते हैं, बट टोटल डेटा का, अब ना उसको 100% समझो, उसमें भी 1.2 लाख सीट्स आर अवेलेबल। तो वो जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए सीट्स अवेलेबल तो मतलब 1.2 लाख टू 1.3 लाख से। द सेम गोज फॉर जेई, लाइक हमारे पास ओनली 60,000 सीट्स अवेलेबल। नाउ उसके लिए ड्रीम्स करते 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स। इज इट अप्रोप्रिएट? Everyone wants to get into this mode, like NEET, like JEE. There are other options too. And जो लोग NEET, JEE, like I have not touched my case, like, और ऐसा नहीं है कि मैं NEET और JEE, I'll go after the CS too. Like CA has been the most celebrated course. Like ऐसा मान गया कि CA किसी से होगा ही नहीं. Yes, hardship that, but it is the most cheapest course. लेकिन वहां पे भी hardships है। एक बंदा जब इन रियल टर्म्स नंबर्स में बात करूंगा तो सीए भी जो घुसाते हैं, जो बच्चा एलिजिबल नहीं है वो घुसता है, इन रियल टर्म्स हम बोलते हैं कि 9% रिजल्ट आया। बट द सेम वे अगर जैसे हम यूपीएससी की बात करते तो वो रिजल्ट गोज वेरी लेस। एक बच्चा जब फाउंडेशन का फॉर्म भरता है, जैसे 100 लोग ने फाउंडेशन का फॉर्म भरा, तो वो फाइनल तक पहुंचने वाले हाउ मच, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर परसेंटेज? एक बार सोचो, अगर फाउंडेशन में 100% है, जो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर उसमें से 30 बच्चे पास हो रहे, अब वो 30 बच्चे समझो ऐसे 30-30 करके 100 बच्चे हो गए। अब वो बच्चे जब एग्जाम देंगे तो वो 30 बच्चे का, चलो राउंड ऑफ 30 में से ही ले से, इंटर का रिजल्ट आता है एवरेज 15% लगा दो, यानी 30 में से 15% यानी 4.5। अब 4.5 का राउंड ऑफ करके समझो कि 5 बच्चे, अब 5 बच्चे में से 9% रिजल्ट आता है, 9% रिजल्ट आता है सीए का, यानी 0.5%। इसका मतलब हर 200 बच्चे जो सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से सीए बनने की प्रोबेबिलिटी है कि हर 200 में से एक बच्चा सीए बनेगा। हार्डशिप्स आर देयर। लाइक अब यहां पे आप बच्चों को, देयर इज अ स्टूडेंट साइकोलॉजी, देयर इज अ पेरेंट साइकोलॉजी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक एवरीवन। यहां पे इंडिया में देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटी एजुकेटर्स, यू नो, माइंड ब्लोन सेलिब्रिटी एजुकेटर्स। लाइक आपने उनका अगर पैकेज खरीद लिया 20,000 का, 30, आपका बच्चा पास हो गया। इट हैज नॉट बीन द केस, राइट? अगर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, लुक आई एम स्पीकिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, लाइक आई विल एंड करूंगा, जो मेरा एंड सेशन है तब तक आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये जो स्टूडेंट, यू विल टेक द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड हु सक्सीडेड, व्हाट अबाउट दोस परसेंटेज जो मैं अभी सीए के बारे में बात किया, 99.5% बच्चे सीए में एंड तक फेल हो जाते हैं। व्हाट अबाउट दोस पीपल जो यूपीएससी में फेल हो जाता है, वो व्हाट अबाउट दोस 95% स्टूडेंट्स जो जेई में फेल हो जाते हैं, व्हाट अबाउट दोस नीट स्टूडेंट्स जो नीट में अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जो नीट नहीं करते, जो जेई नहीं करते, जो सीए नहीं करते, लाइक दोस आर तो कचरा भाई, समझो। उनका लाइफ तो सुबह से उनको, उन बाकी के जो लोग हैं ना, उनके लाइफ के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। जो एटलीस्ट इसके अंदर अपीयर करते हैं ना, वो जो फेलियर है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आई वांट टू लिसन दोस students, I want the rest of the India to listen to those students, like इनके भी कोई अरमा है, इनके भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इसीलिए और हम इनको सुनेंगे कि ये फेल होने के बाद क्या फील करते हैं, व्हाट इज द रोड अहेड फॉर देम, और वहां पे उनको पेरेंट्स को भी कैसे इनको मोटिवेटेड करना है। यस बेटा, यू कैन डू इट, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, बिकॉज यहां से तो लियोनेल मेसी निकलने वाला है नहीं, फुटबॉलर कोई निकलने वाला नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट नेगेटिव, आई कैन नॉट गिव नेगेटिव वाइब्स टू एनीवन, बट वी डोंट हैव सच अ स्ट्रक्चर। आप जिस एरिया में रहते हो, जो स्ट्रक्चर होता है आपका, हमारे देश में वो स्ट्रक्चर नहीं है। वी कैन ओनली क्रिएट क्रिकेटर्स, वी हैव सर्टेन चेस प्लेयर्स, वी हैड सर्टेन टेनिस प्लेयर्स टू,
वी हैड बैडमिंटन प्लेयर, बट व्हाट आफ्टर दैट, हम ओलंपिक में भी मेडल्स नहीं ला पाते। ठीक है, जोक सपाट, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करता है। व्हाट आई वांट टू से, वी वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी वुड लाइक टू लिसन स्टूडेंट ऑडियंस, मतलब ठीक है थोड़ा हार्ड वर्ड हो गया ऑडियंस, वो जो क्या फील करते हैं रिजल्ट के दिन, उनको ऐसे आइसोलेटेड किया जाता है। इवन आफ्टर द हार्डशिप उनको ब्लेम, बहुत गंदे तरीके से ब्लेम कर दिया जाता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा बड़े फेलियर हो। हम अभी जो ये मेरा स्टार्टिंग का सेशन है, इसको मैं एपिसोड 0 नाम देना चाहूंगा, जहां पे मेरी एज अ फाउंडर ये जो मैं कम्युनिटी स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मोनिका पूरी चैनल को हैंडल, कम्युनिटी को हैंडल कर रही है, मुझे गाइड कर रही है। थैंक्स टू मोनिका, आवर फर्स्ट स्पीकर। उनसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मैं जो भी काम करता हूं, धारा राठौर यूज्ड टू बी अ को फाउंडर विथ मी, सो हाईली अप्रिसिएटेड। मेरी जो टीम रहती है, कुलदीप सूर्यवंशी, अमन प्रजापति, रुद्र त्रिवेदी, यस, प्रिंस वढवाणा, ज्वलंत, राहुल है वहां पे बैठा है, निहाल यहाँ पे नहीं है। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो पार्डन मी, ठीक है, दिल से अफसोस है अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो। आई हैव अ वेरी लार्ज टीम, वेरी टैलेंटेड पीपल एंड वी विल रॉक। हमारे सबसे पहले स्पीकर है पार्थ वालड़िया, हाईली अप्रिसिएटेड। उन्होंने मेरे से पहले एक वीडियो अपलोड किया, रिकॉर्ड किया था, सैडली एक टेक्निकल एरर की वजह से उसके अंदर आवाज नहीं था। ठीक है, ये होना था, बिकॉज उसको हम फेलियर बोलेंगे, और वो फेलियर से आगे जब होते हम जीतते हैं, वही हमारा जीवन है। इसीलिए मिर्जा गालिब ने बोला है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत कम निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये एक मिर्जा गालिब का शेर था, मैंने उसको निभाने की कोशिश की। अगर भूल गया हूं तो फिर मैं आपसे, आपके लिए फिर से गा देता हूं। गाना तो क्या बोलते, उसको बोलना होता है एक बार। यस, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये मिर्जा साहिब का, मिर्जा गालिब साहब का शेर था। इसको कोरिलेट करने की कोशिश करना, जो मेरे 95% स्टूडेंट जो जेई और नीट वाले थे, यूपीएससी में अगर ये रेशियो की बात करें तो 99.99% हो जाता है। और अगर आप सीए स्टूडेंट जो एंट्री से लेके एंड तक जाता है, वो 99.50% स्टूडेंट जो अंदर घुसने के बाद उनकी फेलियर तय है। आप समझ रहे हो, मतलब हर 200 स्टूडेंट में से एक बच्चा पास होगा। द काइंड ऑफ हार्डशिप दो स्टूडेंट्स गोज। इसीलिए मैं तीसरी बार उस शेर को आपके मुंह पे ठोकता हूं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी बहुत कम निकले।